Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Today is 5th of August 2020 and I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen, to teach you science. Oxford International School GH Campus, International Lower Secondary Science 1. See the next slide. First from syllabus. In first from syllabus, we have 5 chapters. Chapter number 1, Introduction to Science. It's done, completed. Exercises are done, experiments are done. Chapter number 2, Physical Quantities and Measurements. हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3, A Plant Growth. 4, Habitats and Food Chain. 5, Microorganisms. Inshallah, in our next class, physical quantities and measurements will be done. Complete ho jayega. Okay? See the next slide. Learned. We learned in this chapter, observations can be either qualitative and quantitative. Qualitative और quantitative का concept मैंने आपको बहुत अच्छे से clear किया है. Ali is tall is qualitative and Ali has 2 meter tall या उसकी height 2 meter है, ये quantitative हो जाता है. Quantitative observations are often used to science because they are objective. हमारे पास object होता है, इससे हम कर सकते हैं. Quantitatives are measured by with the help of instruments. Instruments के help से हम उसे measure कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी लंबी चौड़ी या कितनी weight volume रखती है. ठीक है? Physical quantities and SI units. In SI units stand for Uniteds, International the Uniteds. This system evolves from the metric system. Metric system से होता है, इसमें हमारे पास 7 fundamentals हैं: length, mass, time, electric current, temperature, amount of a substance, luminous intensity. Measuring length is the distance between 2 points. 2 points के बीच का जो distance होता है उसे length कहते हैं. The SI units for length is meter m. m से represent करते हैं. Length can be measured with a measuring tape. Measuring tape से measure किया जाता है, half meter tape से. And parallax error is caused by the wrong position of the eye. And we also studied about measuring area. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इस यूनिट में. Today we are going to study about measuring volume. How to measure the volume. Which instruments use volume. अरीबा एडमिट कर लेती हूँ मैं अरीबा को जरा. ठीक है, ठीक है. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो measuring volume है. measuring volume में definitely volume measure किया जाएगा water का. अरीबा बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा. अरीब, ठीक है, म्यूट है. Volume is measuring of the space occupied by a substance. The SI unit of a volume is the cubic meter m3. किसी भी सब्सटेंस की मेजरमेंट को पैमाइश उसके वॉल्यूम से होती है. वॉल्यूम इज द मेजरिंग ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की मेजरमेंट पैमाइश उसके वॉल्यूम से होती है. इज दैट क्लियर? एसआई यूनिट में क्यूबिक मीटर m3 है. The SI unit of volume is the cubic meter m3. देखिए, कुछ चीजें समझने की एंड कुछ चीजें forever memorize करने की होती हैं. अब क्यूबिक मीटर में SI यूनिट में क्यूबिक मीटर m3 है. ये चीज you have to memorize. ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करनी है. ठीक है? 1 cubic meter is a volume of a cubic with length of 1 meter. 1 cubic meter 1 cubic volume है. एक चीज समझिए, 1 cubic meter, देखिए मैं कर्सर लेके जाती हूँ यहाँ पे. 1 cubic meter is the volume of a cubic with length of 1 meter. 1 cubic meter 1 cubic वॉल्यूम है. 1 cubic meter 1 cubic वॉल्यूम है.
as it is a rather large volume, smaller units such as cubic centimeter, cm3 सेंटीमीटर के लिए cm यूज किया जाता है, c सेंटीमीटर, 3 cubics millimeters, mm3 millimeters, liter l and milliliter ml are commonly used. कॉमनली जो चीज़ें यूज की जाती हैं मेजर करने के लिए मिलीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, उनकी बात हो रही है। 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक वॉल्यूम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक वॉल्यूम है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। चूंकि ये एक बड़ी मिकदार है, रादर देन इट्स अ लार्ज वॉल्यूम, लिहाजा दैट्स व्हाई स्मॉल यूनिट्स जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर एल और मिलीमीटर मिली एम आमतौर पर कॉमनली यूज्ड होते हैं। ठीक है, वी यूज दीज कॉमनली। 1 liter L is equal to 1000 milliliters ml and 1 millimeters ml is equivalent to 1 cubic centimeter। जी, 1 लीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से। 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter। सेंटीमीटर cm3 जो लास्ट पे है के बराबर है। ये चीजें you have to memorize because these things you will use forever in your life to measuring volume। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर किसके बराबर है, 1000 किसके बराबर है, ये सारी चीजें। आई एम गोइंग टू explain once again। Volume is a measuring of space occupied by a substance. The SI unit of volume is a cubic meter m3। 1 cubic meter is volume of a cubic with length of 1 meter। 1 meter के बराबर है। As it is rather larger volume, small units such as cubic centimeter, cm3 cubic, millimeter, mm3, liter L and milliliter ml। milliliter के लिए क्या यूज हो रहा है? ml are commonly used। These are used commonly in our daily routine life। 1 लीटर जाते हैं ना दूध लेने के लिए, 1 लीटर दूध दे दें, हाफ लीटर दे दें, 1.5 लीटर दे दें, इस तरह से बात करते हैं ना। पानी लेते हुए भी इस तरह से बात कर रहे होते हैं, दूध के लिए तो स्पेशली कर रहे होते हैं। तो ये वो वाली चीज है। 1 लीटर L is equal to 1000 milliliters। 1 लीटर बराबर है 1000 milliliters के, ml से जिसे हम यूज रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 ml is equivalent to 1 cubic centimeter। 1 cubic centimeter के हैं। Is that clear? You can see the pictures, above pictures, ऊपर जो pictures दी हुई हैं उन्हें देखिए। इसमें measuring volume of liquids, ज्यादातर वॉल्यूम का ही लिक्विड का ही वॉल्यूम मेजर किया जा रहा होता है। हम अभी जब स्कूल ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह तो हम इन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लेबोरेटरी में। Finding the volumes of object with regular shapes। regular कुछ shapes, irregular और irregular shapes का मैंने आपको लास्ट हमारी जो explanation थी उसमें बताया था। Some objects have regular shapes। The volume of objects with regular shapes such as book, basketballs, soft drinks, canes, pyramids and cones can be calculated using formula। And for the regular shapes, we measure the volume, we always use the formula। जो हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं, उन रेगुलर शेप्स को यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज फॉर्मूलाज। लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द फॉर्मूला। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं वॉल्यूम का, वहाँ हमने एरिया मेजर किया था। एरिया मेजर करने के लिए रिमेंबर, एरिया मेजर करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम्स थे कि कौन सा वॉल्यूम कहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला
कहाँ लगाना है, कौन से एरिया को मालूम करने के लिए लगाना है, लेंथ को या विड्थ को। ठीक है, यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, इन शेप्स में से कुछ शेप्स के हम वॉल्यूम्स को मेजर करेंगे। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स में हमारे पास क्यूब है, क्यूब बिल्कुल इक्वल फोर साइड्स, ठीक है, क्यूब होता है वो। इसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, ऑफ सम कॉमन रेगुलर शेप्स ऑब्जेक्ट्स, v इज इक्वल टू L3। इसकी 3 साइड्स को इक्वल करने के लिए, इक्वल के लिए इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू L3 क्यूब। See the next slide. सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हमारे पास है फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई r2h। इसमें हमें मालूम क्या करना होता है, देखिए सिलेंडर में इसका रेडियस, रेडियस मैंने आपको बताया था सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट, दैट कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस, हाइट और इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, ये चीजें मेजर करने की हैं। ये देखिए, ये मेजर किया जा रहा है, दिस एरिया, हाइट एंड दिस। सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। हियर वी आर मेमोराइज द फॉर्मूला। सिलेंडर v इज इक्वल टू पाई r2h। जी, सिलेंडर की ही कुछ मैंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। v इज इक्वल टू पाई r2h, हमें मालूम क्या करना है, बेस, विड्थ, इसकी हाइट, ये चीजें हमें मालूम करनी है। इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। देखें अभी हम मल्टीप्लीकेशन पे नहीं आ रहे, राइट नाउ वी आर जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था। थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि मल्टीप्लाई करना होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू BH, वॉल्यूम इज इक्वल टू BH का मतलब ये है कि वॉल्यूम बराबर है B बेस एंड हाइट के। देखिए बेस इज मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसकी बेस कितनी है उसे मल्टीप्लाई करना है उसकी हाइट से। तो ये क्या इसका फॉर्मूला बनता है, v इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, हाइट से, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड v इज इक्वल टू LBH, L लेंथ, B बेस, H हाइट। क्यूबॉइड मालूम करने के लिए आपको उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए इज इक्वल टू वॉल्यूम बराबर है लेंथ के, बेस के एंड हाइट के। दीज थिंग्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है इसकी एज है, फेस है ये उसका, और ये एज है, यानी कि ये है बेस, B, L हाइट एंड दिस लेंथ। जी देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, हाइट, सॉरी, हाइट, लेंथ, डेप्थ, बेस, डेप्थ यानी कि बेस, बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका फॉर्मूला है। द नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है स्फीयर, गोल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.3, 4 साइड्स आर इक्वल टू 1 साइड। मतलब ये कि एक साइड अगर हम मालूम कर लेते हैं तो बाकी की 3 साइड्स उसी के बराबर हैं। पाई r3, इट्स फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम V, 4.3 पाई r3, सरफेस एरिया A is equal to 4 pi r2, diameter D is equal to 2r,
एंड रेडियस, इसका रेडियस कितना है, रेडियस r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू d/2। जब हम क्लास में जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंटल करेंगे, सामने बैठ के करेंगे, देन कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी मोर क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है कोन। कोन का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r/2h। वॉल्यूम को मालूम करने के लिए आप उसकी हाइट और उसका रेडियस मालूम होना चाहिए। देखिए रेडियस यहां से ये बीच वाला, ये पाई r/2h हाइट, राइट। अभी आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो, वरना जब ये याद कर लेंगे इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। फिर नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन में आपके पास है, फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज V कोन इज इक्वल टू 1/3 DH बेस हाइट, बता दिया मैंने आपको, 1/3 पाई r/2h। D फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। मैंने एट द स्टार्ट भी आपका कहा था कि हम यहाँ पर वॉल्यूम में ज्यादातर जिस चीज को मेजर कर रहे होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। द मेजर to measure the volume of liquids, instruments such as measuring cylinder, barrettes, pipettes, and volumetric flask are used. ये चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ज्यादातर कॉमनली आपकी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। कौन कौन से? measuring cylinder, you can see this is measuring cylinder. बेरेट्स, ये है आपका बेरेट्स, ये है आपकी पिपेट, और ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, राइट। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं। Finding the volume of liquids. A measuring cylinder is commonly used in the laboratory to measure the volumes of liquid as well as volumes of irregular solids using the displacement method. यूजिंग द डिप्लेसमेंट मेथड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्लेसमेंट मेथड होता क्या है। मेजर करने वाले सिलेंडर आमतौर पर कहाँ पर होते हैं? लेबोरेटरीज में होते हैं। इसके साथ सॉलिड्स को ज्यादा यूज किया जाता है, उन्हें मेजर किया जाता है, और इस तरीके को जिसमें ये प्रोसेस किया जा रहा होता है उसे कहते हैं डिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड को कहते हैं डिप्लेसमेंट मेथड। Volumes of liquids as well as the volume of irregular solids. Irregular पानी की कोई शक्ल नहीं है। Irregular solids using the displacement method. ये displacement method कहलाता है। Finding the volume of objects with irregular shapes. Irregular shapes की बात हो रही है। Irregular और irregular shapes का आपको पता है। Regular shapes में आपके पास कोन, क्यूबिड, क्यूबॉइड, सिलेंडर और इस तरह की शक्ल्स होती हैं, और irregular shapes कुछ डिफरेंट होती हैं। Some objects such as pebbles कहते हैं इनको, seashells ये हैं, and keys have irregular shapes. ये irregular shapes के आपके पास कुछ objects हैं। The volume of these small objects can be found by using the displacement method. इन्हें displacement method के through इनका volume मालूम किया जाता है, which make use the measuring cylinder of displacement cane. अच्छा जी, इसका simple सा way ये है कि आप किसी jar में डिप्लेसमेंट मेथड का और इरेगुलर शेप्स का। रेगुलर शेप्स के लिए तो देखिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। इरेगुलर शेप्स के लिए हमने पानी लेना है, इतना पानी भर लेना है, ठीक है। उसमें हमने जिस चीज का इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करना है, पहले इस वाटर को मेजर कर लेंगे, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसे मालूम करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कीज है यहाँ पर, राइट नाउ आई हैव कीज, यस। मुझे इन कीज का वॉल्यूम मालूम करना है। मैं इन कीज को इस पानी में, जब इस ग्लास ऑफ वाटर या जग ऑफ वाटर का जो जग है उसमें
डाल दूंगी तो आप देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है। दिस इज द वे ऑफ टू मेजर द इरेगुलर शेप्स वॉल्यूम। इरेगुलर शेप्स का वॉल्यूम मेजर करने का ये मेथड है जिसे हम कहते हैं डिप्लेसमेंट मेथड। डिप्लेसमेंट मेथड, इज दैट क्लियर? शुड आई रिपीट? लेट्स फिनिश। चलिए जी, कम ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आइए जी। हमारे साथ हैं सेहान, अरीब। अच्छा, अब आप तीनों लोग ऐसे कीजिए, चारों लोग अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन कर दीजिए। कैमरा और माइक दोनों ऑन कर दीजिए जी। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा सेहान, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट वी वर मेजरिंग, हम क्या मेजर कर रहे थे? बहुत सोचने की बात है, आसमानों से कोई फरिश्ता उतरेगा और बेटा वो आपको बताएगा। सवाल पूछनी जी क्या सवाल पूछनी है। कर रहे थे हम लोग? जो टॉपिक आपने पढ़ा, नेम ऑफ द टॉपिक? वॉल्यूम। नहीं समझ आ रही मुझे आपकी, आप नहीं बता रही। अच्छा आप बताइए बेटा, खतीजा। चैप्टर का नाम है। जी खतीजा, चैप्टर का नाम जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा है, इस टॉपिक का नाम क्या है? मेजरिंग वॉल्यूम। मेजरिंग वॉल्यूम में आपने क्या पढ़ा? व्हाट यू लर्न? बताइए, जितना भी समझ आया, जो चीज समझ आई है वो बताइए। टीचर, अगर हम लोग घी को अगर पानी में डालेंगे तो उसकी आवाज तेज हो जाएगी। उसकी आवाज तेज हो जाएगी? ऐसा तो मैंने नहीं कहा बेटा। तो आपने कहा था ना, पानी में ग्लास में घी डालेंगे नहीं, तो उसकी उसकी आवाज आवाज तो मैंने बात ही नहीं की, उसका वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं। और कीज जो है इन irregular shape, and for the to measure the irregular shape we use the method of displacement method. In displacement method we take water, हम वाटर लेते हैं किसी जार में, जो स्पेसिफिक हमारे पास लेबोरेटरी जार्स हैं, उससे पानी को पहले वाटर को मेजर करते हैं कितना है, और जो भी इरेगुलर शेप है, स्टोन है, सी शेल है, कीज है, केचर है, इस तरह की जो भी चीज हमें जिसका वॉल्यूम मेजर करना है उसे पुट करेंगे तो आप देखिएगा उसका वॉल्यूम रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेगुलर शेप्स में हमारे पास कोन है, सिलेंडर है, क्यूबाइट है, एक ये सारे रेगुलर शेप्स हैं जिसके लिए हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो हमने याद करने हैं। अभी मैं आपको होमवर्क में भी फॉर्मूलाइज ही दूंगी याद करने के लिए, जो आप मुझे कल मैं आपसे फीडबैक लूंगी और आप लोग मुझे ये फॉर्मूलाज याद करके सुनाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा हमने पढ़ा है, हाउ टू मेजर वॉल्यूम। लास्ट वीक हमने पढ़ा था एरिया, हाउ टू मेजर एरिया फॉर यूजिंग विद यूजिंग फॉर्मूलाज, और इरेगुलर शेप्स के लिए फॉर्मूलाज नहीं होते, तो वो भी हमने पढ़ा था कि साथ उसको कैसे मेजर करें। ठीक है, इरेगुलर याद करने। नाउ इज इट क्लियर? यस एंड अब्दुल समद, क्लियर है बेटा? चलिए, नाउ आई एम डूइंग योर होमवर्क। यस मिस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मिस इरेगुलर मिस जी यू वांट टू आस्क, आपने कुछ पूछना है? मिस इरेगुलर याद करने। सॉरी नहीं समझ आई बेटा। इरेगुलर याद करने। बता रही हूँ, इरेगुलर में कुछ चीज है याद करने की, फॉर्मूलाज याद करने, और वो रेगुलर शेप्स के होते हैं। ओके बाय। अल्लाह हाफिज।